This is today's coverage. We would be discussing about the scope of e-commerce first. Then we'll be talking about the e-commerce based activities. And then we'll be talking about the technical components indulged in e-commerce. Now let me give you a brief about the e-commerce. I think this is not a new term for any one of us because we had been doing transactions over e-commerce platforms from last 3 to 5 years, if not before that, because this COVID-19 era, this outbreak has brought us to a situation where we are more inclined towards the electronic based activities. If I would say before 2019, we were familiar with the e-commerce platforms and we had been doing transactions over these platforms, but somewhere we were little reluctant because we had a habit, we were habitual to the physical shopping. But when this COVID-19 outbreak happened in the starting of 2020, when it reached India, we realized that there are many other sophisticated alternatives available with us where we can do shopping and we don't even need to go out of our houses. So that is how I would say that e-commerce emerged in India because before that, before the 2019, 2020, it had its presence, but only in some of the area, in some of the urban cities. But after this outbreak, we started shopping over e-commerce platforms so frequently and we became habitual to it. So e-commerce, what is e-commerce in the literal way? E-commerce, when you do transactions, when you do shopping, when you purchase something over any electronic platform where the seller is there and a buyer is there, that particular transaction, that relation would be known as the e-commerce or e-commerce activity. Here we head towards the formal definition of e-commerce. So e-commerce or electronic commerce, of course, is the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet. So basically, here we purchase something as a customer, or if we are the seller, we are selling something over an electronic platform. That electronic platform can connect us through the internet, or we can also connect to a purchaser or a seller over telephone. So if we are purchasing something over telephone, that would also be considered as e-commerce. However, the internet is not involved here. So internet or telephone or any other way where you are transacting with people over any electronic device. That electronic device can be your laptop, your computer, your television, the smart television, or like we have some channels, Home Shop 18, something like that. So there they advertise on television and then we make a call to them and then we purchase products. So these things are known as the electronic commerce activities, or they would come under the purview of e-commerce. E-commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing. Here we have a request from some of the students that I need to explain in Hindi. अच्छा ठीक है, let me explain in Hindi as well. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स जो है, आप या तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे यू हैव एन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के थ्रू, जैसे हमारा Amazon है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है. सो इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी सेलर से कनेक्ट कर सकते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ आप
किसी सेलर से अगर फोन पे कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज टेलीविजन में आपने देखा होगा होम शॉप 18 एक चैनल है, वहां पर दे यूजुअली सेल प्रोडक्ट्स। तो अगर किसी प्रोडक्ट को पसंद करके आप उनको कॉल करके कहते हैं और वो आपको डिलीवर करते हैं और आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, सो वहां पे इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे थे ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर आपने वो प्रोडक्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देखा, इसीलिए वो भी आपका ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंडर आएगा। मैंने अभी तक आपको ये समझाया है। इज इट क्लियर नाउ? एक सेकेंड, लेट मी कॉल SOL people so that they can mute the chat. Give me a minute. Otherwise, you would keep on talking over chats and it would keep on distracting me. हाँ जी बच्चों, मैंने म्यूट कर दिया था अपने आप को और माइक भी ऑफ, कैमरा ऑफ कर दिया था बिकॉज मैं SOL में कॉल कर रही थी। या आई हैव a query or a suggestion there. Let me see. ठीक है, आपको नोट्स नहीं मेरी पीपीटी मिल जाएगी। हाँ जी, तनीषा हांडा कहती हैं कि if we use some physical shop to purchase goods but use an electronic medium to pay, will it be considered e-commerce? So it would be considered partial e-commerce because you are making an electronic payment. Electronic payment is a part of e-commerce but it cannot define the whole e-commerce. तो आप उसको e-commerce का नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये e-payment कहलाएगा आपका बस, या फिर it is a part of e-commerce just. ओके, या मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगी, मेरी पीपीटीज आपको एक लिंक पर मिल जाएंगे। एक लिंक मैं आपको यहीं पे चैट बॉक्स में एक लिंक दूंगी, उससे आप सीधा एक ड्राइव पर जाएंगे जहाँ पे जितनी भी पीपीटीज होंगी, जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी मैं वहां पे पोस्ट करती रहूंगी। यू वुड हैव एन एक्सेस टू माय पीपीटीज। अलॉन्ग विद दैट यू हैव स्टडी मटेरियल ऑन आवर वेबसाइट, वो कर सकते हैं आप। और ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो ही रही हैं, सो ऑनलाइन क्लास आपकी एक होगी जिसमें ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट। अदरवाइज आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी जाकर ले सकते हैं। हमने बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए लगाई हैं जो किसी भी कारण से नहीं आ सकते, लाइक दिल्ली से बाहर रहते हैं या फिर जॉब करते हैं या कोई भी रीजन है, सो दे कैन कनेक्ट टू अस फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, otherwise they can go for the offline as well. तो साइमल्टेनियसली चलेंगी, जो कोर्स यहाँ पर होगा वही ऑफलाइन में भी होगा। चलिए, now let me go back to my PPT. So we were discussing about the e-commerce. So e-commerce is not just restricted to the e-commerce over the internet, but internet marketing or internet commerce is just a part of e-commerce, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, आपका फोन, आप कॉल से कोई चीज मंगवा रहे हैं, या फिर ऑफ कोर्स लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ई कॉमर्स में यूज हो सकते हैं। ई कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स भी ई कॉमर्स का एक पार्ट है। अब आप जब इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल फोन में, और सपोज मैं Amazon से कोई चीज मंगवा रही हूँ, तो Amazon मैं अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकती हूँ या फिर मैं अपने फोन में भी कर सकती हूँ। तो जब मैं अपने लैपटॉप में ओपन कर रही हूँ तो दिस इज जस्ट ई कॉमर्स, बट जब मैं सेम Amazon की एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे ओपन कर रही हूँ तो वो मोबाइल कॉमर्स कहलाएगा।
तो उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस when you are using your mobile as the electronic device to do the commerce activity would be known as mobile commerce. इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये जो तनीषा ने पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो ई कॉमर्स का ही पार्ट है, फंड्स ट्रांसफर करना। जैसे ई बैंकिंग, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है अपने बैंक के साथ या फिर किसी और को पैसे भेजे हैं, उसमें बैंक में इन्वॉल्व है, मैंने पेटीएम के थ्रू किया है या फिर गूगल पे के थ्रू किया है, तो ये भी ई कॉमर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी एक तरीके की कॉमर्स एक्टिविटी है। बैंक्स जो है वो भी कॉमर्स में इन्वॉल्व है, वो भी एक तरीके का व्यापार कर रहे हैं, वो आपके पैसे को अपने पास रखते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उसी पैसे को आगे यूज करते हैं, तो उनका भी ये एक तरीके का व्यापार है। इसीलिए जब भी हम ई बैंकिंग में यूज करते हैं, वो भी ई कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं होता है, लेकिन उसका एक पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके कुछ सप्लायर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेजोन पर एक सेलर हूँ, कुछ चीजें मैं अमेजोन पर बेचती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स को मैं तो कस्टमर तक पहुंचाती हूँ, लेकिन कस्टमर से पहले मुझे वही मोबाइल फोन सप्लायर से लेने होते हैं। तो जब मैं सप्लायर से भी एक कनेक्शन बना कर लेती हूँ मोबाइल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि बायर टू सेलर और सेलर टू बायर ट्रांजैक्शन चलते हैं, लेकिन सेलर टू सेलर भी आपने सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस भी सुना होगा। तो वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप कनेक्ट करते हैं अपने सप्लायर्स से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक चेन के थ्रू। नेक्स्ट, इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो चीज बेच रहे हैं उसको प्रमोट भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे कर रहे हैं, तो दैट वुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अमेजोन पे अगर आपने कोई चीज सर्च करी है और उसके बाद अपना फेसबुक अकाउंट खोला है, तो उस पे उसी चीज की एडवर्टीजमेंट आने लगती है। इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे होती है। तो जब जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सिर्फ ट्रांजैक्शन तक ही वो चीज सीमित नहीं होती, उसकी एडवर्टीजमेंट भी की जाती है, उसके डिस्काउंट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो ये सारी जब एक्टिविटीज इंटरनेट पर होती हैं, तो वो भी ई कॉमर्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जब आप कोई चीज अमेजोन से खरीदते हैं, तो आपने उनको पेमेंट कर दी। पेमेंट आपने चाहे गूगल पे के थ्रू की या पेटीएम या अमेजोन पे के थ्रू की, तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। सो दैट वुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब सिर्फ आपने कोई चीज खरीदने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली, ऑर्डर किया, वहां से वो चीज डिलीवर हो गई, इनके बीच में भी काफी डेटा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डेटा अबाउट योर करंट एड्रेस, they have data about your date of birth. Along with that, they have information about your email ID, your phone number. Sometimes it has an access to your Google account as well. आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, जब आप Gmail से कनेक्ट करते हैं, तो they have an access to your location as well. So this is known as the electronic data interchange. So it is also a part of e-commerce. Inventory management systems. Inventory management systems means कि आप अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ अमेजोन पर। अब अमेजोन पर बेचने के लिए मुझे थोड़े बहुत मोबाइल अपने पास रखने पड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक फायदा होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आया है, तो आप विद इन 2-3 आवर्स कहीं से अरेंज करा के भी दे सकते हैं।
अनलाइक फिजिकल स्टोर में आपके पास कोई खरीदने आया है, अगर आपके पास इन्वेंट्री में नहीं है तो वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन अमेजोन पे आपको ये फायदा है कि आपको ऑर्डर मिला है अभी, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, आप किसी और से परचेज कर सकते हैं। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, साथ ही साथ आपसे रिलेटेड सारा डेटा वहां पर फीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज सर्च की है, ओके, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं अवेलेबल अमेजोन पे, वो आपको शो करने लगता है। या फिर आपके डेटा को फेच करके आपकी नीड को जानता है कि आप इस तरीके की चीजें खरीद रहे हैं, तो हो सकता है आपको इस चीज की नीड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार के लिए सर्च कर रही हूँ कहीं पर, तो कार के साथ वो मुझे अलग अलग एक्सेसरीज भी दिखाएगा कि अगर मैं कार परचेज करती हूँ तो उसके साथ मुझे और क्या चीजें चाहिए होंगी। दिस इज नोन एज द ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, so that they fetch data from you what you need, and then they provide you services according to your needs and expectations. So this is what e-commerce is. Is there any question? PPT, and now we'll discuss how it all started. So here we have given the timeline of e-commerce. E-commerce कैसे start हुआ? So 1979 में first time teleshopping start हुई. What is teleshopping? When you have advertisements there on the television कि आपको ये खरीदना है, इतनी चीज आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप होम शॉप 18 का देखते हैं, या और भी चैनल्स हैं जहां पर टेली शॉपिंग की जाती है. सो फर्स्ट एवर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं, वो इंटरनेट नहीं था. सो फर्स्ट एवर टेली शॉपिंग चैनल वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 1979. उसके बाद टेली शॉपिंग चलती रही, लेकिन इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था. फिर 1995 में इट स्टार्टेड विद Amazon. 1995 में they came up with a website where they were selling books, only books. तो Amazon कैसे स्टार्ट हुआ? Amazon एक एप्लीकेशन थी जो सिर्फ बुक्स बेचती थी, कुछ और नहीं था. अब Amazon ऐसा है जहाँ पे आप एक सुई से लेके कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सिर्फ बुक्स बेचते थे. So 1995 में they started with selling books over the internet.
उसके बाद IBM ने रिसर्च स्टार्ट किया। 1994 में IBM ने रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको 3 साल लगे इस रिसर्च में और लेकर आए वो एक टर्म ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो टर्म कॉइन हुआ, कब से ई कॉमर्स एग्जिस्टेंस में आया? 1997 में। फिर 2000 में there was a $300 million campaign by IBM on e-commerce infrastructure capabilities। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। IBM ने, IBM किस चीज की कंपनी है? जो कंप्यूटर्स बनाती है और इंटरनेट एक्सेस देती है। तो IBM ने सबसे पहले ई कॉमर्स पे रिसर्च करना शुरू किया, इस टर्म को कॉइन किया और फिर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई 2000 में। फिर 2017 की बात करें तो 0.76% ऑफ GDP was coming from e-commerce activities. In 2020 it has grown to 1200%, यानी 12 गुना ज्यादा बढ़ गया 17 से लेके 20 में। और 2021 की बात करें so it was expected to reach $84 billion, जो इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स प्रेजेंट किया है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स है। Okay, so it was the history of e-commerce, how it evolved from 1979 and it has reached to an era where everything is electronic. हम कोई भी चीज खरीदनी है, be it groceries or something, even there are uplas available there on Amazon, तो आप Amazon पे कुछ भी ले सकते हैं। So that is how it has evolved in the countries like India, और जो हमसे advanced country है वहाँ पे बहुत पहले से इसका presence है। एक और वीडियो है, let me directly go to the difference between the e-commerce and e-business. So as there was a query raised by a student कि e-commerce जो है वो क्या e-business का पार्ट है या e-business जो है e-commerce का पार्ट है, तो मैं कहूंगी कि e-commerce जो है वो e-business का पार्ट है। अब जो बिजनेस है, बिजनेस आप खुद सोच सकते हैं कि बिजनेस में कितनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर के साथ, वो तो एक पार्ट है इसका, लेकिन उसके अलावा आपके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके कुछ सप्लायर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप सोसाइटी से ट्रांजैक्ट करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कस्टमर तो सिर्फ एक पार्ट हो गया बिजनेस का, उसके अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। सो बिजनेस, ई बिजनेस यानी जब आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली करने की कोशिश करते हैं कि आप सप्लायर्स से भी सामान इलेक्ट्रॉनिकली मंगा रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आप गवर्नमेंट से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपस में कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेट
के बारे में सुना होगा कि आपका इंट्रानेट है जो सिर्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली की जा रही है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो ई बिजनेस का पार्ट है। और जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी जब आप कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर उसकी पेमेंट कर रहे हैं किसी और पार्टी को, वो ई कॉमर्स है। तो हम ये कह सकते हैं ई कॉमर्स जो है वो एक ई बिजनेस का पार्ट है। ई बिजनेस में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ई कॉमर्स एक छोटी चीज है, ई बिजनेस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ई कॉमर्स को हम फिट कर देते हैं, लेकिन इसमें और भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं हमें ई कॉमर्स को इनकॉर्पोरेट करने के। अदरवाइज तो हमारा फिजिकल कॉमर्स में काम चल रहा था इतने सालों से, लेकिन व्हाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स इज easy to set up. It is always easy to set up e-commerce business rather than the physical infrastructure. कोई चीज आपको बेचनी है तो आप एक वेबसाइट ज्यादा इजीली बना सकते हैं एक बिल्डिंग से। तो जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन ई कॉमर्स जो है वो रिलेटिवली थोड़ा इजी है। फ्लेक्सिबल कॉमर्स आवर्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो सुबह 9 बजे जाके आपको 10 बजे जाके वो शॉप खोलनी पड़ेगी, रात को आपको 8 बजे वो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉमर्स आवर्स होते हैं। नेक्स्ट है चीपर देन ट्रेडिशनल कॉमर्स, यानी अगर मैं नॉर्मल कोई शॉपिंग करने जाती हूँ तो वहां पे मुझे महंगी चीजें मिलती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कॉस्ट भी निकालनी है, अगर रेंट दे रहे हैं तो वो भी निकालना है, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सैलरी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं वो ऐड कर जाता है हमारे प्राइस में। लेकिन अगर हमने ई कॉमर्स में देखा होगा ज्यादातर उसमें हमें कम प्राइस पे क्यों मिलता है, क्योंकि मुझे ज्यादा इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती, मुझे ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं रखने पड़ते, मुझे वहां पे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुकान खड़ी नहीं करनी होती, इसीलिए वो थोड़ा चीपर होता है। नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे शॉप खोलूंगी तो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे, पंजाब से तो यहाँ पे लेने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स शुरू करती हूँ तो वहां दूर दूर से लोग इजीली परचेज कर सकते हैं एंड आई कैन डिलीवर टू देम। सो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इतनी नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडीज, ई कॉमर्स में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर जो हमारे पीएम ने स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज दी जाती हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीपर भी है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। न्यू मार्केट एंट्री, किसी भी न्यू मार्केट में एंट्री करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर मुझे कोई शॉप खोलनी है तो मुझे फीजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस शुरू करना है तो आई कैन इजीली स्टार्ट एनी बिजनेस। लोअर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, लोअर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी शॉप है तो मुझे 100 मोबाइल फोन रखने होंगे। अगर मैं अमेजोन पे बेच रही हूँ तो सिर्फ 10 मोबाइल फोन रख के भी मैं बेच सकती हूँ, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा मैं बाहर से खरीद के ले आऊंगी। लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, आपको मार्केटिंग और सेल्स में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आप बैनर्स लगाते हैं या फिजिकली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो आपको महंगी पड़ती है। आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल भेज के अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ पर्सनल टच, जो हम ज्यादातर फेस करते हैं। हम काफी चीजें अमेजोन से लेना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही है कि वो कपड़ा कैसा है। या ग्रोसरीज, मैंने सपोज 1 किलो आलू मंगा लिए,
तो अब वो हो सकता है खराब दे दें मुझे। तो इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल टच होता है, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से थोड़ा दूर जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो यूजुअली लोगों को अगर कपड़े खरीदने हैं तो वो शोरूम में जाके खुद ट्राई करके लेना पसंद करते हैं रादर देन परचेजिंग फ्रॉम एनी ई कॉमर्स चैनल। डिलीवरी टाइम, अब मुझे इंस्टेंटली कोई चीज चाहिए तो मैं शॉप पे जाके खरीद लूंगी, क्योंकि अगर मैं आज अमेजोन पे ऑर्डर करूंगी तो कल से पहले नहीं आएगा अगर मैं प्राइम मेंबर भी हूँ तो डिलीवरी में जो टाइम लगता है उससे बचने के लिए लोग ई कॉमर्स की जगह फिजिकल शॉप्स पे जाते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, कभी कभी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, वो पेमेंट फेल हो जाती है, पैसे कट जाते हैं, वापस नहीं आते, इस तरीके के बहुत सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। या कभी कभी हमारी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं। तो इन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी लोग ई कॉमर्स से दूर भागते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब कोई